دوسری طرف والدین کھڑے ہوں، رشتہ دار کھڑے ہوں، دوست کھڑے ہوں، کنبہ قبیلہ کھڑا ہو، سب سے زیادہ محبت جس سے ہے اس کی بات کو ترجیح دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آپ کے والدین نہیں کرتے تو آپ کہیں گے میں بھی نہیں کرتا چونکہ میرے والدین نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نماز پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا اماں تو پڑھتے نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ نہیں، تو نے ثابت کرنا ہے گھر میں کہ میں سچا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب، نمازیں 5 پڑھنی ہیں اور ساتھ ان کو بھی لگانا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ واقعی عاشق رسول ہے، اس کا دعویٰ نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ کے اجمعین ایک ایک مثال بڑی پڑی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تابع داری کی وجہ سے انہیں عزتیں ملی۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ حشر کے اندر 7 نمبر آیت میں ایک اصول دیا موٹا سا، زندگی کا اس کو اصول بنا کے رکھے، اور وہ کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے فخذوہ، اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے اس سے رک دو۔ اب زندگی کے اندر کوئی وہ کام نہ کیجیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو کیا اس کو چھوڑیے مت، اس کو کیجیے۔ بعض لوگ معاشرے کے اندر بڑی خرافات کھڑی بس کر رہے ہیں جی، کیونکہ وہ کر رہے ہیں، ہمسائے کر رہے ہیں، بڑے کر رہے ہیں، دادا جی کرتے تھے۔ آپ صاحب علم ہیں، آپ علم سیکھ رہے ہیں، آپ دین سیکھ رہے ہیں، آپ نے قوم کو دین جا کے بتانا ہے، پڑھانا ہے، آپ سے لوگوں نے پوچھنا ہے کہ اس بارے میں رہنمائی کیا ہے، غمی کا موقع، خوشی کا موقع، آپ نے وہ چیزیں اساتذہ سے پوچھ کے بتانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ ایک صحابی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی تھی، آپ نے فرمایا نعم الرجل خریم استی، خریم استی بندہ بڑا کمال کا ہے۔ کہا کیا یہاں موجود ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خریم استی بندہ بڑا کمال کا ہے لیکن 2 باتیں اس میں اچھی نہیں ہیں۔ ایک بات لولا طول جمتی و اسبال ازاری، 2 باتیں اس میں اچھی نہیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس کے بال جو ہے نا وہ کندھوں سے بھی نیچے ہیں۔ اسلام بال رکھنے کی اجازت دیتا ہے صرف کندھوں تک، اس سے نیچے نہیں۔ فرمایا اس کے بال کندھوں سے نیچے ہیں، یہ بات اگر نہ ہونا بندہ بڑا کمال کا ہے۔ اور پھر شلوار اس کی ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، اگر یہ نہ ہو بندہ بڑا کمال کا ہے۔ مجلس برخاست ہو گئی، اٹھے صحابی رسول جا کے کہتے ہیں خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا آج تذکرہ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تو بندہ بڑا کمال کا ہے لیکن 2 باتیں تیرے اندر اچھی نہیں ہیں، ایک بال تیرے بڑھے ہوئے اور دوسری شلوار تیری نیچے لٹکتی رہتی ہے اور زمین پہ لگتی رہتی ہے، جبکہ مسلمان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر تک ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے خریم اسدی اٹھے فاخذ شفرتہ وقطع شعرہ الی اذنیہ، فوراً کینچی پکڑی اور بالوں کو کاٹنا شروع کر دیا اور بال کاٹ کے کانوں تک کر لی اور کہا جو اللہ کے رسول کو چیز پسند نہیں مجھے بھی وہ، میرے نبی کو بال اتنے پسند نہیں مجھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جو اللہ کے نبی کی پسند کو پسند بنا لیتا ہے رب کائنات اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پسند نہیں کرتا، نہ نبی اسے پسند کرتے ہیں نہ اللہ اسے پسند کرتا۔ اور دوسری بات انہوں نے شلوار اٹھا کے ٹخنوں سے اوپر کر دی، کہا میرے نبی کو اچھی نہیں لگتی تو مجھے کیا ضرورت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شلوار ٹخنوں سے نیچے ما اسفل من القعبین فهو فی النار، جو جتنی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی آگ کے اندر ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھے اور بالوں کو کبھی بھی کندھوں سے بڑا نہ کرے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر وہ کام کرنے ہیں محبت رسول میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اور وہ کام ہم نے قطعاً نہیں کرنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ معاشرے کے اندر بڑی خرافات ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، تو آپ اہل قرآن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب میں نے پہلی بار حدیث پڑھی نا تو بڑا دل میں خوش ہوا کہ لوگ کہتے ہیں اللہ والے یہ اللہ والے، لیکن حقیقت میں اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन्नास, कुछ ऐसे लोग हैं जमीन पर जो अल्लाह वाले हैं। इन्ना लिल्लाहि अहलीन, अहल कहते हैं घर वालों को। कुछ लोग अल्लाह के अहल हैं, अल्लाह के अपने हैं, अल्लाह के घर वाले हैं। सहाबाए किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल वो कौन? फरमाया हुम अहलुल कुरान अहलुल्लाहि व खासतुहु। और लोगों जो अल्लाह के कुरान को पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं ना, ये अल्लाह के अहल, अल्लाह के घर वाले होते हैं। वह हम खासतुहु, और अल्लाह के खास बंदे होते हैं। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह के खास बंदे भी हैं और अल्लाह के अपने भी हैं। तो हम कभी भी वो काम नहीं करेंगे जो मोहब्बत के अंदर लोग करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करते। और तीसरी और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने घरों के अंदर जो अपनी ज़िंदगी बसर करनी है वो आम लोगों से मुख्तलिफ होनी चाहिए, वो आम लोगों से मुख्तलिफ होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपका एक भाई है, वो स्कूल पढ़ता है और आप मदरसे में पढ़ते हैं। आपके अमल से पता होना चाहिए कि आप उससे ऊंची जगह पर हैं। ताबेदारी के अंदर वालिदैन, उनके काम के अंदर हाथ बटाने के अंदर आप एक नंबर पर रहना चाहिए। अगर आप भी उनके बराबर हैं या उससे नीचे हैं तो फिर आप अल्लाह वाले नहीं हैं, फिर आप खास अल्लाह के बंदे नहीं हैं। अब देखिए ना, बड़ी मशहूर है मिसाल भी आम लिखी बड़ी फेसबुक पे भी आती रहती। कहते हैं एक माँ थी, उसका एक बच्चा था, वो स्कूल पढ़ता था और एक बच्चा था जो मदरसे पढ़ता था। अब माँ घड़ा पानी का लेके आ रही है तो बच्चा स्कूल वाला जो है वो देख के तबसरे करता है, माँ को कहता है माँ तुमने ऐसे उठाया, अगर ऐसे उठाती तो बड़ा अच्छा होता। माँ तुमने ऐसे कर लेना था तो अच्छा हो जाना था, तूने बड़ा कड़ा ले लिया, छोटा ले लेती तो तुझे बोझ ही लगना था। और जो मदरसे वाला आया आगे, वो मिला, उसने कहा माँ ये बोझ मेरे कंधे पर रख दो, उठा के अपने कंधे पे रखा और अच्छा। ये है फर्क कि तबसरे और अपने मशवरे नहीं देने जाके, बल्कि काम के अंदर हाथ बटाने जैसे वो कहते हैं। और यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिज़ल्लाह की फी रिज़ल वालिदैन, सख़तुल्लाह की फी सख़तिल वालिदैन। जिसके ज़मीन पर वालिदैन राज़ी हो, आसमान वाला उससे राज़ी होता है। आसमान वाला उनसे राज़ी नहीं होता, वो भी नाराज़ होता है। और यकीनन आपकी उम्र के जो बच्चे होते हैं इनमें ये कुताही होती है, लापरवाही होती है। हालांकि वो बेअदब नहीं होते, लापरवाही होती है, ज़रूरत नहीं समझी, इधर से सुना उधर निकल गए, इधर को ऐसे हो गए। माँ बाप का अदब व एहतराम आपकी इम्तियाजी हैसियत होनी चाहिए। जैसे आप असातिज़ा का अदब करते हैं, हम समझते हैं कि जो तलबा होते हैं यकीन वो असातिज़ा का बड़ा अदब करते हैं, और मैं कहता हूँ वैसे ही वो अदब अपने वालिदैन के भी जाके करें। और अगर ऐसा बराबरी वाला मामला हो गया तो इंशाअल्लाह आप वाक़ईअतन ज़मीन पर अल्लाह की मखलूक में अल्लाह के फरिश्ते। बल्कि नामा इकबाल के शेर, वो कहते हैं फरिश्ता मुझे कहने से मेरी तहकीर होती है। नामा इकबाल कहते हैं मुझे फरिश्ता ना कहा करो, इससे मेरी तौहीन होती है, मैं तो फरिश्तों से भी आला हूँ। कहता है फरिश्ता मुझे कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मसजूदे मलाइका हूँ, मुझे इंसान ही कहने दो। मुझे तो फरिश्तों ने सजदा किया तो मैं तो फरिश्तों से आला हूँ। तो आप वाक़ईअतन फरिश्तों से भी आला मकाम पा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों में मुनफरद अमल करना शुरू करें, आप वालिदैन की इताअत, आप उनकी ताबेदारी, उनके सामने निगाहों को, जुबान को झुका के रखें, यकीनन अल्लाह के यहाँ अल्लाह के फरिश्ते हैं आप ज़मीन पर। मैं एक मिसाल सुनाता हूँ। बंदा बसा औकात छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता है और बड़ी बात अहमियत नहीं देता। वो बात जब बड़ी होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ होता है। अत-तरगीब व तरहीब एक किताब है, अहादीस की उसमें जमा है, मुख्तलिफ वाक़यात ताबईन के और सहाबाए किराम के उसके अंदर लिखे हुए। अवाम बिन हौशब एक सहाबी, वो कहते हैं कि मैं एक दफ़ा ना एक इलाके में गया, वहाँ मैं कब्रिस्तान के अंदर गया तो कब्रिस्तान में असर के बाद का वक़्त था, बड़ा अजीब मैंने मंजर देखा। कहते हैं कि मैं जब कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो एक कब्र फट गई है सामने, तो मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, कब्र फटी, उसके अंदर से एक बंदा निकला।
खबर फटी, बंदा निकला और बंदे का जो सर है वो गधे का सर है, पूरा जिस्म इंसान के और सर गधे का। कहते हैं उसने जिस तरह गधा ढिचक्यू करता है, उसने 3 बार ऐसे किया, फिर वो कब्र के अंदर चला गया, कब्र उसकी बंद हो गई। कहते हैं मैं बड़ा अजीब मंजर देख के हैरान हूँ, लेकिन कहते हैं मैंने देखना शुरू कर दिया कि कोई मेरे अलावा कोई इस मंजर को देख रहा हो तो उससे जाके अपनी ये बात बताऊं, पूछूं उसको क्या माजरा है। कहते मैंने कोने में देखा तो एक औरत है जिसका घर कब्रिस्तान के कोने पर, तो वो ऊपर ही बैठी है और वो चरखा काट रही है। कहते मैं उनके पास गया और मैंने पूछा भाई ये जो मंजर मैंने देखा है तूने भी देखा? कह रही है हाँ मैंने देखा। हाँ ये पता है तुम्हें ये क्या ऐसा वाकया कभी पहले भी हुआ, ये आज ही हुआ मेरे सामने? उन्हें कहने लगी नहीं ये तो कई सालों से हो रहा है। उसने कहा वो कैसे हो रहा है? कहने लगी मैं वो बदनसीब माँ हूँ जिसका बेटा ये बेटा मेरा है। कहा फिर इसको क्या हो गया? कहने लगी ये बच्चा था मेरा और गुनाह करता था, गलतियां करता था, नशा करता था। जब घर में आता तो मैं इसको रोकती, माँ थी इसको कहती कि बेटा ये काम तेरा दुरुस्त नहीं, इसको छोड़ दो। तो ये मुझे आगे से कहता था माँ गधे की तरह ना बोला कर, ये गधे की तरह मुझे कहती रहती है, डांटती रहती है, मुझे ना कहा कर। कहते हैं बस उसकी बोलियां थी, रोज मुझे गधा गधा कहता। ये नशे के अंदर एक दिन आया, इसकी मौत आ, इसको दफना दिया। बस उस दिन के बाद हर असर के बाद ये मंजर होता है, कब्र फटती है, ये बाहर निकलता है, अल्लाह ने इसके सर को गधे का सर बना दिया और ये गधे की तरह आवाज़ें दे के अंदर चला जाता है। अल्लाह ने दुनिया के अंदर कब्र के अंदर इसको इस अजाब से दो चार करा। जो दुनिया में वालिदैन का इताअत गुजार ताबियादार नहीं होता उसे इज्जतें नहीं मिलती। इज्जतें तो माँ के प्यार और उसकी दुआओं से मिलती, और जिसे दुआएं नसीब न हुई। कहता है मेरे दुश्मन को भी मेरे से बड़ी परेशानी है। शायद कहते हैं मेरे दुश्मन को भी मेरी वजह से बड़ी परेशानी है। जब भी वो वार करता है खंजर टूट जाता है। कहते हैं मैं तुम्हें बतलाऊं ये क्यों होता है? कहते हैं मेरी माँ की दुआओं का असर है कि जिसकी वजह से मेरा दुश्मन जब भी वार करता है उसका खंजर टूट जाता है, मुझको कोई नुकसान नहीं होता। और एक बात जो मैं आखिरी करने लगा, बस औकात बंदा बड़ा नेकोकार होता है, वो समझता है इतनी नेकियां करता हूँ, एक गलती भी करूँगा क्या फर्क है। ये भी गुमान होता है नेकी करने वालों को, नमाजियों को, उनको ये गुमान होता है तो बड़ा नेककार हूँ, कोई बात नहीं, एक गलती तो माफ़ी हो जाती, कोई गलती नहीं। जो जितना बड़ा होता है उतनी उसकी पकड़ और पूछ भी ज़्यादा हो जाता है। आपने बड़ा वाक़या सुना होगा जुरैज वली का, बड़ा मशहूर वाक़या, हदीस की किताब सही मुस्लिम में। ये वली था अल्लाह का, एक झोंपड़ी बनाई, अल्लाह अल्लाह क्या करता था, लोगों में मशहूर था कि बड़ा अल्लाह का वली है, जो दुआ करता रब रद्द नहीं करता, जो कहता है अल्लाह मान लेता है, इतना बड़ा वली है, जुरैज इसका नाम है। अच्छा एक दिन झोंपड़ी में नमाज पढ़ रहा था, नफली इबादत कर रहा था, माँ आई, माँ ने आवाज़ें मुझे दी, वो अपनी नमाज पे जारी रहा, नमाज जल्दी से मुकम्मल करके उसने माँ की बात को नहीं सुना। माँ इंतजार करती, उसको ज़रूरत होगी, माँ फिर चली। फिर दूसरे दिन आई, फिर वो अल्लाह का बंदा अपने हिसाब से लगा हुआ, उसे ये नहीं पता कि नफली कामों से पढ़ के माँ बाप का अदब और उनकी इताअत है, वालिदैन की इताअत फरमाबरदारी में है, और नफली नमाज नवाबल में शामिल है। माँ चली गई, तीसरे दिन आई, माँ फिर ऐसे ही बेचारी कह के आकर थक के जाते हुए माँ ने कहा तू किसी बदकारा का मुंह पे, बस चली। लेकिन अल्लाह तो माँ के वो बोल कबूल हो गए अल्लाह के। अगले दिन लोग आए, उन्होंने मौलवी साहब को कहने, अल्लाह वाला कहने, वली साहब को बाहर निकाला, मारना शुरू कर, झोंपड़ी उठा के बाहर फेंक दी और खूब वली की दुर्घट बनाई और उसको खूब मारा। जब थक गए ना साहब तो पूछता यार मेरा गुनाह तो बताओ, मेरा गुनाह क्या? और क्या फलां औरत है, उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ, उसकी शादी हुई कोई नहीं, हमने उससे पूछा ये बेटा कैसे पैदा हो गया, तो उसने कहा जी ये मेरे उस वली की करामत का नतीजा, ये तो मेरा उसके साथ नाजायज ताल्लुक था, इसलिए
दूसरी औलाद पैदा हो गई। लोगों ने अब उसको मारा और खूब कहा। अब ये वली कहता है उसको बुला के ला। औरत को बुलाया गया, बच्चा भी उसने उठाया हुआ है। ये अल्लाह का वली, इतना अल्लाह का करीबी बंदा है। इसने उसके सर पे ऐसे हाथ मारा और कहा, अल्लाह के हुक्म से बोल के बता कि तेरा हकीकी बाप मैं हूँ या कोई और है। तो वो बच्चा, जो बच्चा बोलता नहीं है, गोद के अंदर 2-4 दिन का बच्चा बोला नहीं करता। ये रब के मौजूदात होते हैं जो अल्लाह दिखा दे। ये वली की करामत अल्लाह दिखा दे। अल्लाह का वली उसको हाथ लगाता है, बच्चा बोल के कहता है, लोगों ये मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप फलां बंदा है, मेरी माँ ने झूठा इल्जाम लगाया इस पे। अब लोग उसकी मिन्नतें करते हैं, माफ कर दे, गलती हो गई। कहते हैं अब तेरी झोपड़ी सोने की बना देगा, जो तू कहेगा। उन्होंने कहा बस तुम चले जाओ, ये बेहतर है। अब मुझे बताओ, ये कोई नेकोकार थोड़ा था। ये अल्लाह का वली था जिसके इशारे पर माँ की गोद में बच्चा बोल पड़ा। इससे बड़ा वली और क्या। लेकिन इसने माँ की तौहीन की है, माँ को सताया। माँ ने एक बोल बोला है, अल्लाह ने सारी दुनिया के सामने उस वजह से उसे रुसवा किया। और सिर्फ वहां के लोगों के सामने रुसवा नहीं किया, कयामत तक उसका तज़किरा होता रहेगा कि इसने माँ की नाफरमानी की थी, अल्लाह ने उसे रुसवाई करके दिखाया था। तो आप ये बातें इस उम्र में करने वाली हैं, माँ बाप की खिदमत और उनकी ताबेदारी, इताअत शारी, लोगों से मुनफरद अपने आप को रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको तब इज्जत से नवाजेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अपने वालिदैन से नेकियां करता है, अल्लाह उनके वयुज़ादु फी रिज़्क़ी, अल्लाह उसके रिज़्क़ में इजाफे कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी उम्र में बरकत डाल देते हैं। जो बंदा वालिदैन से नेकियां करता है, रिश्तेदारों से नेकियां करता है। तो आखिर के अंदर दुआ से पहले मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप को मुनफरद समझें, अपने आप को आम न समझें। आप अल्लाह के खास लोग हैं। अपना मकाम, अपना स्टेटस उसी तरह रखते हुए अपने काम भी वैसे बनाएं, आम लोग जैसे आपके काम ना हो। और इस रबीउल अव्वल के महीने में वो काम कीजिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। असातिज़ा से रहनुमाई लीजिए, सुन्नत के मुताबिक काम कीजिए। कोई ऐसा काम न कीजिए जो अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक ना हो। वरना ना छोटी सी बात है, छोटी सी बात। मैं एक वाक़या सुना के बात खत्म करता हूँ। एक सहाबी रसूल है, अबू उबैद उनका नाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, आपने आज़ाद कर दिए। तरीके दमिश्क हदीस एक तारीख की किताब, उसमें वाक़या ऐसे ही करते गए। तो आपने उनकी जिम्मेदारी लगा दी कि खाना बना के ना तकसीम तुमने करना है। खाना बनाया हंडिया के अंदर, उसको तकसीम पे लगा दिया। अब तकसीम करने करते दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास बैठ के अपना बर्तन लेके कहने लगे, ये नाबिल निज़रा, बकरी जमा की थी, उसका गोश्त पकाया। फरमाया जो दस्ती का गोश्त है ना, बाजू का, वो गोश्त मुझे दे। तो साहबी कहते हैं मैंने चमड़ी डाला, दस्ती होती, दस्ती कहते हैं बाजुओं के गोश्त। ये बकरी है ना, इसकी 4 टांगे होती हैं, अगले 2 बाजू होते हैं, पिछली 2 टांगे होती हैं। तो अगली 2 टांगों का जो गोश्त है उसे अरबी के अंदर ज़रा कहते हैं, यानी दस्ती का गोश्त कहते हैं। तो कहते हैं मुझे कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाबिल ज़रा, मुझे ये दस्ती का गोश्त है। कहते हैं मैंने चम्मच डाला, आपकी प्लेट में रख दिया, आपने तनावल फरमाया। कहते हैं फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मरतबा मुझे कहा नाबिल ज़रा, तो मैंने फिर चमचा डाला, फिर वो बोटी रख दी, आपने तनावल फरमाया। अब तीसरी मरतबा फिर आपने मुझे कहा खाने के बाद नाबिल ज़रा। कहते हैं मैं मुस्कुराने लगा, तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल, बकरी की 2 ही दस्तियाँ होती हैं, कहाँ से ले? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुन के उसको डांटने लगे और फरमाने लगे, लऊ सकता, काश आज तू खामोश रहता। मैंने तुझे कहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की अहमियत आपके सामने रखने लगा। आपने फरमाया काश तू खामोश रहता और चम्मच हंडिया में डालता, फिर निकालता, रब मेरे लिए वहाँ ज़रा की बोटी पैदा कर देता, दस्ती का गोश्त पैदा कर देता, तू मुझे देता। फरमाया मैं जब तक मांगता रहता, तू खामोशी इख्तियार करके लब्बैक कह के ये काम करता रहता, जब तक मैं मांगता रहता, रब इसको पैदा मेरे लिए करते ही रहता। बंदे ने अपनी अकल उड़ा दी, तो 2 ही होती है, मैं दे दी। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मुझे 2, चुप करके डाल के दे दे।
اسی لیے کہ جب انسان کو شعور نہ ہو پھر تابع داری اور اطاعت کے اندر ہی کامیاب ہو۔ بس اوقات استاد محترم کو کام کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی عقل میں گھوڑے دوڑا رہا ہوتا ہے، حالانکہ کچھ عمریں ایسی ہوتی ہیں جس میں چون چناچے نہیں چلتی، جس میں سر تسلیم خم چلتا ہے، کہتے ہیں سمجھ آتی ہے نہیں آتی ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ وہ کسی نے پوچھا نا، محمود غزنوی کا غلام ایاز تھا، بڑا مشہور تھا غلام، تو اس کو ایک دفعہ ان کے مالک نے کڑوا پھل دیا، وہ کھانے کو کھا گیا۔ اس نے کہا یار تم نے کڑوا تھا بتا دیتا کہ یہ کڑوا ہے۔ کہا ساری زندگی جس مالک نے جو دیا کھا لیا، اب کڑوا بھی لگا تو کھا گیا، کیونکہ اس نے کہا تھا کھا جاؤ۔ اسی لیے شاعر علامہ اقبال نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ تو بادشاہ نے بھی پھر اپنے ساتھ اس غلام کو اسی لیے کھڑا کیا تھا کہ جس نے تابع داری کی، اور جو تابع داری نہ کرے، جو اپنی عقل کے گھوڑے جڑاتا رہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری بھی ہم نے ایسے ہی کرنی ہے، سمجھ آتی ہے تب بھی، نہیں سمجھ آتی تب ہم نے اس کو قبول کر لینا ہے اور پھر اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا، آخرت کے اندر بھی عزت دے گا۔ اللہ آپ کو، آپ کے اساتذہ کو، آپ کے والدین کو اللہ دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آخر خدا بنا